Assalamu alaikum. Unit 5. Function, structure, reading, writing, listening. Expressing certainty and uncertainty. Expressing obligation. In this unit, you are going to learn how to express certainty and uncertainty. Both these functions are very similar to the functions you have learned in Unit 4 about expressing possibility and impossibility. We are going to listen to an interview of the finance minister who is answering question about the current year's budget. As you listen to his interview, notice how he is expressing certainty about the success of the government economic policies. एक इंटरव्यू होने जा रही है उसको सुनते हैं फिर सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए उस पर बात करते हैं उसको सीखते हैं इंटरव्यूअर मिस्टर मिनिस्टर हाउ वुड यू कमेंट ऑन दिस ईयर्स बजट मिनिस्टर साहब आप इस ईयर के बजट पर क्या कमेंट देना चाहेंगे मिनिस्टर वेल ऑफ कोर्स आई हैव all the positive comments to make. I will say this with certainty that overall this budget is positive, expert oriented and business friendly. I am absolutely sure that this budget has been welcomed by all communities, especially the business community who has termed it as an investor friendly budget. Above all, the most satisfying point is that whatever recommendations we had given have been approved 100%. वेल यकीनन मेरे पास कहने के लिए सिर्फ मुस्बत बातें ही हैं मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि मजमूरी तौर पर यह मनसूबा मस्बत माहिरीन पर मबनी कारोबार दोस्त है और वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर करता है कि यह बजट तमाम तबकात खुसूसन महरूम तबके के लिए खुशाइंद है ये एक कौम दोस्त बजट है सबसे इत्मीनान बख्श बात यह है कि जो सिफारिशात हमने दी थी वो 100% मंजूर कर ली गई हैं इंटरव्यूअर Can you highlight some of the prominent features of the budget, Minister? It's definitely be a people-friendly budget that will surely give a boost to the national economy. It's certainly very good from the agriculture point of view, and it is especially good for textile industry. This year's budget clearly indicates a cut in taxes and unquestionable record increase in development. So I say this with confidence that we will for sure achieve a targeted GDP growth of 6 to 8%. ये यकीन एक दोस्त बजट है ये जो यकीनी तौर पर कौमी मईशत को फ़रोग़ देगा ये ज़रिए नुक़्ता नज़र से बिलखुसूस बहुत अच्छा है और ख़ास तौर पर टेक्सटाइल सनत के लिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि बजट में तो वाज़ेह तौर पर टैक्सों में कमी और तरक्की में रिकॉर्ड का इजाफा ज़ाहिर किया गया है लिहाजा मैं ये एतमाद के साथ कहूँगा कि ये यकीनन तौर पर GDP की नमू का हदफ 6 से 8% हासिल करेगा In the dialogue you must have noticed the following statement that express certainty. Let us repeat them once again. इस dialogue में हमने express certainty को express करने के बारे में पढ़ा अब हम इस पर थोड़ा और करते हैं कि कैसे Wow, of course I will say this with certainty. I am absolutely sure and it is an absolute success. Have been 100% approved. It's definitely a people-friendly budget. While surely give a boost of the national economy, it's certainly very good from the agriculture point of view. It is especially good for textile industry. This year's budget clearly indicates a cut in taxes and unquestionable record is increased in development. I say this with confidence that we will for sure achieve to target GDP growth of 6 to 8%. ये इन्होंने कुछ सर्टेनिटी का इजहार किया है
सर्टेनिटी असल में किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल इत्तेमाद या यकीन का इज़हार करना होता है, यानी ये कि किसी बात का सच होना या होने का इम्कान बेशक और बग़ैर किसी शक के ज़ाहिर करना। उर्दू में यकीन का इज़हार उमूमन ऐसी इस्तिलाहात में जुमलों के ज़रिए किया जाता है जो किसी बात को बेशक साबित या मुमकिन समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यकीनन, बिल्कुल, यकीनी तौर पर, ज़रूर। जैसे कि यहाँ पर यूज़ हुए हैं इंग्लिश में वेल, ऑफ कोर्स, आई विल से विद सर्टेनिटी। तो ये इन्होंने सर्टेनिटी का यकीन का इज़हार किया है। तो इस तरह भी आगे चलते हैं। The ordinary citizen comments express uncertainty and doubt. The ordinary citizen's comments express uncertainty and doubt. I doubt if this budget is addressing these two basic issues, poverty and inflation. I would be surprised if there is much for the common man. I don't suppose that this budget is going to bring और वगैरह वगैरह ये सब जो है। तो इसमें इस सिटीज़न ने अनसर्टेनिटी का, गैर यकीनी का और शक का इज़हार किया हुआ है। Now let's try to understand what mean by the term obligation and how we can express obligation. The act of binding on self by a social, legal or moral tie. A social, legal or moral requirement such as a duty, contract or promise that compels one to follow or avoid a particular course of action. A course of action imposed by society, law or conscience by which one is bound or restricted. An act of course of action that is demanded of one as by position, custom, law or religion. Some similar words that mean the same as the word obligation or commitment: duty, need, responsibility, liability. खुद पर किसी समाजी, कानूनी या अखलाकी रिश्ता या बंधन के ज़रिए पाबंदी लगाने का अमल, जैसे कि कोई फ़र्ज़, मुआहदा या वादा जो किसी ख़ास रास्ते पर अमल करने या किसी मखसूस कार्रवाई से बचने के लिए मजबूर करता है। यह कार्रवाई समाज, कानून या अखलाकियात के ज़रिए आयद की जाती है, जिसके तहत किसी को मखसूस रास्ते पर अमल करने की पाबंदी होती है। इसको कहते हैं ऑब्लिगेशन। An act of course of action that is demanded of one as by position, custom, law or religion. Some similar words that mean the same as the word obligation or commitment: duty, need, responsibility, liability. एक ऐसा अमल या रवैया जो किसी से ख़ास अहद, रस्म, कानून या मज़हब के तहत तकाज़ा किया जाता है। ऐसे अल्फाज जो पाबंदी इस ऑब्लिगेशन के कुछ मिलने जुलने वाले सिमिलर वर्ड्स भी हैं, जिसमें है पहला कमिटमेंट, फ़र्ज़, ज़रूरत, ज़िम्मेदारी, मुआहदा, जवाबदेही, ज़िम्मेदारी, ड्यूटी, नीड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी। इन सबको ऑब्लिगेशन के सेम वर्ड से सेम मीनिंग है। एक्टिव एंड पैसिव या बाद में कहीं और से पढ़ लेना, कहीं और से नहीं, मेरे चैनल के कुछ पिछले वीडियो से पढ़ लेना जो हमने पहले की हुई थी। Functions in the text. Every text that we read has a main aim, purpose or a particular function or use. Writers use special kind of words and writing styles to convey their message, and once we as readers recognize these signals or words writers use, we are able to understand the text better. हर टेक्स्ट का जो हम रीड करते हैं उसका मकसद या ख़ास फ़िक्र या कोई ख़ास यूज़ होता है।
मुसन्निफ़ीन यानी राइटर्स अपने टेक्स्ट को पहुंचाने के लिए, अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए ख़ास किस्म के अल्फाज और तहरीरी अंदाज का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इन इशारों को पहचान लेते हैं, इनको रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, इन सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, तो हम टेक्स्ट को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। Different texts serve different purposes. For example, an advertisement serves the purpose of introducing a product and selling it. A travel voucher gives information about travel destinations and wants to attract people to visit these sites. A dictionary too has its own use and help readers know word meaning, pronunciation, and grammatical use of words. A newspaper has different sections and each section has a different purpose. For example, readers read the main stories to know what's happening at national or international level. Some people are just interested to read sport pages and some business pages, whereas the teenagers might like to read the horoscope or the word puzzle. हर टेक्स्ट का अपना एक ख़ास मकसद होता है। मसलन एक एडवर्टाइजमेंट का मकसद किसी शे का, किसी मसनूआत को मुतारिफ़ कराना, इंट्रोड्यूस कराना ताकि इसकी सेलिंग हो। तो उसमें वो होगा, एडवर्टाइजमेंट में क्या होगा, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, उनका इश्तिहार लगा हुआ होगा। ट्रैवल ब्राउचर एक सफ़र के बारे में मालूमात फराहम करने वाला टेक्स्ट लोगों को किसी मखसूस मकाम पर जाने की तरगीब देता है। इजाफी तौर पर डिक्शनरी में डिक्शनरी का भी कोई ये ख़ास मकसद होता है कि ये रीडर्स को वर्ड्स के मीनिंग बताता है, उसको प्रोनाउंसिएशन बनाता है, ग्रामेटिकल यूज़ बताता है। तो ये भी इसका एक ख़ास मकसद है। और न्यूज़पेपर के ख़ास बहुत से मकसद होते हैं, डिफरेंट मकसद होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। कोई न्यूज़ रीड करता है, कोई स्पोर्ट न्यूज़ रीड करता है, कोई इंटरनेशनल न्यूज़ रीड करता है, कोई क्या करता है, कोई बिजनेस पेजेस रीड करता है, कोई टीनेजर जो होते हैं वो पजल हॉरोस्कोप वगैरह सॉल्व करते हैं। तो उनका अपना एक मकसद होता है। So we can say there are various kinds of reading text and we read different text with different purposes. तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बहुत। So we can say there are various kinds of reading texts and we read different text with different purposes. हम ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट होते हैं और हर किस्म के टेक्स्ट का मकसद मुख्तलिफ होता है। You might have noticed that some reading text gives us information, some give readers advice and instructions, some reading texts convey complaint and suggestion. In this section we will try to understand one particular function that we find in text, and this function is instruction. आपने नोटिस किया होगा कि कुछ पढ़ने वाले टेक्स्ट मालूमात फराहम करते हैं, कुछ मशवरे और हिदायत फराहम करते हैं और कुछ शिकायत और सर्विस पहुँचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा एग्जाम्पल, ये जो BRT स्टेशन ले लें, BRT स्टेशन में वो TVs लगे होते हैं और स्क्रीन्स पड़े हुए होते हैं एडवर्टाइजमेंट एरिया के लिए, या फिर वो पोस्टर्स लगे हुए होते हैं। तो उस पोस्टर्स का या और एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन्स का ख़ास मकसद क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट करना। और वहाँ पर मैप लगा होता है, उसका क्या मकसद होता है, गाइड करना। ब्राउचर कह सकते हैं उसको आप, ट्रेवलिंग ब्राउचर। तो उसका मकसद होता है कि वो आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि आपने अगर इस तरफ जाना है तो इस तरफ जाएँ, इस तरफ जाना है तो इस तरफ जाएँ, तो वो आपको इस तरह गाइड करता है। फिर बस में आपको हिदायत दी गई होती हैं इस तरह। तो हर मतन का, हर टेक्स्ट का अपना एक मकसद होता है। डिफरेंट टेक्स्ट सर्व डिफरेंट पर्पसेस, ये तो हमने पढ़ लिया। When we
read something, try to understand the text main purpose or function. जब भी आप कुछ रीड करने लगते हैं तो आप उस टेक्स्ट के मेन पर्पस को समझने की कोशिश करें. To get to the library at college, first go through the front door ahead of you in reception desk, turn left and go into the lobby, turn right. The library is the first entrance on your left. अब फॉर एग्जांपल ये कॉलेज में एक टेक्स्ट लगा हुआ है लाइब्रेरी जाने का. टू गेट टू द लाइब्रेरी एट कॉलेज, ये उसका टाइटल है और नीचे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं. फर्स्ट को पहले आप जाएं दरवाजे से, फिर रिसेप्शन डेस्क में जाएं, फिर लाइफ स्टाइल मुड़ें, फिर लॉबी में जाएं, फिर राइट तरफ मुड़ें, फिर वहाँ पर लाइब्रेरी है. डोंट फॉरगेट योर स्टूडेंट कार्ड. तो ये एक टेक्स्ट है, इसका मकसद है इंस्ट्रक्शंस करना. राइटिंग फॉर्मल लेटर्स, जॉब एप्लीकेशन. You have learned about how to write informal letters in the previous units. In this unit, you will learn about formal letters. Formal letters have a variety of purposes, such as applying for a job, confirming business deals, complaining about inadequate goods or services, or soliciting new customers for your business, etc. पिछले यूनिट्स में आपने सीखा इनफॉर्मल लेटर्स को लिखना. In this unit you will learn about formal letters. इस यूनिट में हम आपने पिछले यूनिट्स में गैर रस्मी यानी इनफॉर्मल लेटर्स लिखने के बारे में सीखा है. इस यूनिट में आप फॉर्मल लेटर्स के बारे में सीखेंगे. फॉर्मल लेटर्स के मुख्तलिफ मकासद होते हैं, जैसे कि नौकरी के लिए दरख्वास्त देना, जॉब के लिए अप्लाई करना, कारोबारी दिनों की तस्दीक करना, सामान के बारे में शिकायत करना या कारोबार के लिए नए ग्राहकों को दरख्वास्त देना. However, all of these letters have a common goal to get the results you want from someone you may or may not know personally. Probably the most important formal letters you will be writing will be a job application, and this section will provide you with details for writing formal letters with a focus on writing job applications. ताहम इन तमाम खतूत का, इन तमाम लेटर्स का एक मुश्तरक मकसद होता है. आप जो नतीजे चाहते हैं उन्हें किसी शख्स से हासिल करना चाहें, आप उस शख्स को ज़ाती तौर पर जानते हो या नहीं. शायद सबसे अहम फॉर्मल लेटर जो आप लिखेंगे वो जॉब एप्लीकेशन होगी, और ये सेक्शन आपको फॉर्मल लेटर्स लिखने की तफसीलात फराहम करेगा. ख़ास तौर पर जॉब एप्लीकेशन लिखने पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए ये आपको सिखाएंगे. तो चलते हैं आगे. Your job application letter should be properly composed and styled so that you can make a good impression. No employer wants to hire people who can communicate effectively. With that in mind, we will give you some valuable guidelines and tips on making your letter look and sound professional. जॉब की दरख्वास्त के हद जो लेटर होता है वो दुरुस्त तरीके से मुरतब और स्टाइल में होना चाहिए ताकि आपका अच्छा तसव्वुर छोड़ सकें. कोई भी हायरिंग वाला, कोई भी एम्प्लॉयर ऐसे लोगों को नहीं हायर करना चाहता जो मौसर तरीके से बातचीत नहीं कर सकते. इस बात को जहन में रखते हुए हम आपको कुछ कीमती रहनुमाई और दस्तावेज़ फराहम करेंगे ताकि आपका ख़त पेश औराना, ताकि आपका लेटर प्रोफेशनल नज़र आए और सुने जाने में मौसर हो. राइटिंग फॉर्मल लेटर्स जॉब एप्लीकेशंस. आपने पिछले यूनिट में पढ़ा कि आप इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में हमने पढ़ा. अब हम फॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जॉब एप्लीकेशंस. तो जॉब एप्लीकेशंस आप लिख रहे हैं तो आपने इस चीज़ों का ख्याल रखना है कि वो प्रॉपर्ली कंपोस्ट हो, अच्छी तरह से कंपोजिंग हुई हो उसकी, और अच्छी तरह से स्टाइलिंग हुई हो उसकी. ये गुड इंप्रेशन पड़ेगा इससे. कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी हायर करने वाला ये नहीं
चाहेगा कि वो ऐसे बंदे को हायर करे जो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। विद दैट इन माइंड वी विल गिव यू ये कुछ सजेशंस देंगे where the letter starts with dear sir and we end it with yours sincerely. जब एक लेटर डियर सर के साथ शुरू होता है तो इसको हम ख़त्म करते हैं योर सिंसियरली पे। यू कैन एंड अ लेटर ऑफ टू समवन यू नो विद बेस्ट विश। जब आप किसी को जानने वाला होता है आप उसको लेटर लिखेंगे तो आप उसको बेस्ट विशेस भी लिख सकते हैं योर सिंसियरली के जगह। द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेटर शुड एक्सप्लेन योर रीज़न फॉर राइटिंग। फर्स्ट पैराग्राफ में आपका जो लिखने के वजह है वो होना चाहिए। यूजली वो स्पेस बिटवीन ईच पैराग्राफ, हर पैराग्राफ के बीच में आपने स्पेस छोड़नी है। इफ़ यू राइटिंग फॉर्मल लेटर इट नॉट अ गुड आइडिया टू यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस। आपने जब आप फॉर्मल लेटर्स लिख रहे हो तो आपने उनमें शॉर्टकट वर्ड्स का यूज़ नहीं करना, जैसे कि कांट, वांट एट्सेट्रा। आपने पूरा वर्ड लिखना है। When you're writing an application for a job, it is a good idea to stay with wonderful person you are. For example, जब आप कोई फॉर्मल लेटर जॉब के लिए लिख रहे हो तो आपने अपने बारे में कुछ मजबूत बताना है कि मैं एक इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग बंदा हूँ। बी पोलाइट इवन यू राइटिंग कंप्लेंट। खुश शाइस्ता रहें चाहे आप कोई कंप्लेंट क्यों ना लिख रहे हो। मुख्तसर रहें, पॉइंट पर रहें। यूज़ फॉर्मल रिक्वायर्ड लैंग्वेज। अच्छे अल्फाज का इंतखाब करें, वो यूज़ करें। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने बताना है कि आपका लेटर किस चीज़ के बारे में। बी हॉनेस्ट, बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, बी पॉजिटिव। दैट्स इट। ये हुआ लेटर। लिस्टिंग टू जॉब इंटरव्यू। Congratulations, you have been invited to a job interview based on your job application and resume. Congratulations, you have been invited to a job interview based on your job application and resume. Your qualifications match those the employer is seeking in a candidate. The next step is the interview, where you will have the opportunity to convey to an employer the skills you could bring to the job. Remember that again, an interview is a two-way street. It is a chance for you to get to know each other and to assess if this position and firm is a good one. The interview allows you to gain insight into the job and the organization, and it enables the employer to determine if you have the skills and abilities needed to be an effective member of his or her organization. So, in this section, you are going to learn how to give job interviews. मुबारक हो, आपको आपकी नौकरी की दरख्वास्त और रिज्यूम की बुनियाद पर एक इंटरव्यू के लिए मदऊ किया गया है। आपकी काबिलियत वो है जो एम्प्लॉयर को एक उम्मीदवार में तलाश कर रहा है। नेक्स्ट कदम आपका इंटरव्यू है, जहां आपको एम्प्लॉयर के साथ इस बात का मौका मिलेगा कि आप इसके लिए क्या फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। याद रखें कि इंटरव्यू दो तरफा बातचीत है। ये दोनों के लिए एक मौका है कि वो एक दूसरे को जानें, इस पोजीशन और कंपनी के अंदरूनी सूरत हाल के बारे में समझें। एम्प्लॉयर के लिए ये ज़रूरी है कि आप एक मौसर और कामयाब रुकन बने। तो इस सेक्शन में आप सीखेंगे कि नौकरी के इंटरव्यू कैसे दें। How much do you know about job interviews? Check your understanding. आप जॉब इंटरव्यू के बारे में कितना जानते हैं? Check your understanding. You should arrive at job interview. आपने इंटरव्यू पे टाइम से पहुंचना है, बल्कि टाइम से पहले पहुंचना है। At the interview, you should know the company's history. जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपने कंपनीज की हिस्ट्री का पता करना है। The secretary who greets you before an interview should only ask your name, will be asked by the interviewer to give an opinion of the letter, will get you a coffee when you ask. शायद सिक्योरिटी आपसे आपका नाम पूछे इंटरव्यू से पहले, बाद में आपको चाय वगैरह पूछने के लिए। थैंक यू नोट्स आर एन ओल्ड फैशन डिवाइस नो लॉन्गर नेसेसरी शुड बी सेंड टू इंटरव्यू विद इन 2 days। ये पुरानी चीज़ है। थैंक यू नोट्स भेजा जाता था इंटरव्यू के बाद, आई थिंक।
Non-verbal communication skills mean messages that can convey through or facial expressions, posture, even movements, and gestures when you go and interview. Non-verbal communication skills mean messages that can convey through or facial expressions, posture, eye movements, and gestures. When you go for an interview, my skills, my interest, remember that positive non-verbal communication will reinforce your verbal message. Therefore, greet the interviewer appropriately, maybe with a firm handshake. Maintain eye contact with the interviewer, use positive vocal qualities and facial expressions, sit attentively to demonstrate your interest and enthusiasm. गैर ज़बानी मौसरात की महारत से मुराद वो पैगाम हैं जो हमारी जिस्मानी इजहार, रवैया, आंखों की हरकतों और इशारों के ज़रिए पहचाने जा सकते हैं। आपने बिल्कुल एक्टिव रहना है भाई, आपने अपने पूरे जिस्म को कंट्रोल में रखना है। अपनी आंखें, अपने आई मूवमेंट्स, अपने गेस्चर्स, अपने पोस्चर, अपने एक्सप्रेशन सबको कंट्रोल में रखना है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अपने जिस्म की ज़बान और रवैये का ख़ास ख्याल रखें। याद रखें कि मस्बत गैर ज़बानी मौसरात आपके पैगाम को मज़ीद मजबूत करती है। इसलिए इंटरव्यू लेने वाले से मिलते वक्त एक अच्छे अंदाज में हाथ मिलाएं। इंटरव्यू के दौरान आंखों का रब्ता बरकरार रखें। आई कॉन्टेक्ट आपने बिल्कुल मेंटेन रखना है भाई। इंटरव्यू के दौरान आंखों का रब्ता बरकरार रखें और अपने चेहरे के तसरात से अपनी दिलचस्पी और जोश को जाहिर करें और एक्सप्रेशंस ऐसा रखें कि भी वो इम्प्रेस हो जाए। ये ना कहें कि इसको ये शायद तंग आ गया, ये इसको किसी ने ज़बरदस्ती बिठाया हुआ। आल्सो यू मस्ट कंसिडर interview etiquette, and these are also you must consider interview etiquette, and these are: arrive on time, introduce yourself, don't call the interviewer by his name, don't ask about salary and benefits until the employer brings up the subject, send a thank you note promptly. आपने सही कहा। आपने ये चीज़ें करनी है कि टाइम पे पहुंचना है, अपने आपका अपना तारुफ करवाना है और इंटरव्यूअर को उनके नाम से नहीं बुलाना, सर मैम वगैरह बुलाना है। डोंट आस्क अबाउट सैलरी, जब तक उन्होंने सब्जेक्ट या टॉपिक नहीं लिया आपने सैलरी का नहीं पूछना, बेनिफिट्स का नहीं पूछना और बाद में थैंक यू कहना है। दैट्स इट, यूनिट नंबर 5। यस, थैंक यू सो मच।